Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. I'm Abi Lahiri. You are watching ABP Live podcast. Joining me today in conversation is Tuhin A. Sinha. We interviewed him sometime back with Aditya Pitti for his book, The Modi North India Story. And he's joining me today again in conversation. He's the national spokesperson for Bharatiya Janata Party. Tuhin, welcome to ABP Live podcast. How are you? Thank you, Abir. It's wonderful to talk to you. And as you can make out, we are 4 days away, 5 days away from a historic verdict. So the excitement is building up across the country. And great to be on your show and great to chat with you. Okay. Well, the line of conversation which what I would like to stick to is firstly talking about all the 6 phases. What exactly happened? Where do you think that BJP is gonna win with a good margin, or whatever you want to comment on it? And secondly, there are 2 very popular gentlemen in the public figure. One is Yogendra Yadav and another one is Prashant Kishore. Both of them popular faces in the Indian political strategy space. One has been a psephologist, one has been a popular political strategist. Contradictorily, both are stating some very different facts. That's their, how should I say, imagination or whatever they are predicting. Their predictions are slightly very different. They both are saying कि 400 बार तो नहीं हो रहा, that is for sure. But before we jump into that, let's talk about all the 6 phases. How do you think the BJP has performed? I think the performance has been exceptional. कुछ लोग जो हर दूसरे दिन आके अपने YouTube के चैनल के जरिए कहते हैं कि पिछले 2 दिन में माहौल बदला है. Let me tell you that इस देश का माहौल हर 2 दिन में नहीं बदलता है. You should not, such people should not underestimate the IQ levels of our people. We have a very mature electorate. और जो माहौल है वो पिछले 10 साल में जो बना है उसके बहुत विपरीत नहीं हो सकता इन चुनाव में. तो 10 साल में जो लोगों ने जो परिवर्तन देखा है, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, we have obviously, on your show we have discussed the infrastructure creation in the northeastern states. But northeastern states is one part of the development. There has been a 70% increase in the stretch of national highways in the last 10 years. 91,000 किलोमीटर थी उस वक्त 2014 में नेशनल हाईवे की स्ट्रेच, आज जो है 1,50,000 से ऊपर है. लगभग 31,000 किलोमीटर नए रेलवे लाइन बिछाए गए. ऐसे एरियाज को कश्मीर में, मणिपुर में कनेक्ट किया गया जहां कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि रेल लाइन आएंगे. इनफैक्ट कल या परसों जो है पहली बार सीमेंट जो है वो मेनलैंड से मणिपुर में ले जाया गया रेल के जरिए. 800 किलोमीटर स्ट्रेच के मेट्रो रेल. You being in Noida must be benefiting out of that. In fact, most people in most cities have been benefiting from the easy access and easy connectivity that Metro Rail has provided, between satellite towns and main cities and vice versa. जब ग्रामीण भारत की बात आती है, 13 करोड़ लोगों के घर में टैप वाटर कनेक्शन, 100% सैनिटेशन, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना. तो ये सारी चीजें जो है 10 साल से एक माहौल बन रहा था. हर 2 दिन में माहौल नहीं बनता. और आज लोगों ने जो परिवर्तन देखा है उसके विपरीत वो नहीं जाएंगे. वो नहीं चाहते कि 25 साल पहले राहुल गांधी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पीछे खींच ले जाए. 90 के दशक में सिर्फ कास्ट के आधार पर वोट पड़ते थे. सिर्फ कास्ट के आधार पर जितनी जाति, जितनी आबादी उतना हक. But I think, people of this country have moved on from the era of 1990s. They refuse to be drawn back into that era. And that is why I am very confident of an exceptional mandate, an unprecedented mandate, and the biggest ever mandate which a non-Congress alliance would have managed in the country. Okay. Now, I know my limitations, so I don't want to rush into numbers. But when I say it's going to be the biggest mandate, that pretty much explains it. आपने जब मुझे गिनवाया कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सड़कें बनी, टैप वाटर आया, बट एक जो बहुत बड़ा कंप्लेन पब्लिक स्पेस में है कि अगर इतना कुछ हुआ, देन प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाके ये क्यों बोलना पड़ा कि घुसपैठिए हैं, या राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा, या मंगलसूत्र, या भैंस. ये सब कॉन्वर्सेशन में क्यों आया है? देखिए, पॉलिटिक्स में रेटरिक का एक अपना रोल होता है. ठीक है, एक कंटेक्सचुअलाइजेशन का एक अपना रोल होता है. प्रधानमंत्री जी के बोलने का अर्थ बहुत सिंपल था.
कि ओबीसी वर्ग से जो रिजर्वेशन चुपके से चुराई जा रही है या उनके वर्ग से हटाकर माइनॉरिटीज को या विशेष समुदाय को दी जा रही है, वो गैर संवैधानिक है। और पिछले सप्ताह जो कैलकाटा हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया, इट्स अ हिस्टोरिक वर्डिक्ट व्हिच हैज कॉल्ड द ब्लफ ऑफ ममता बनर्जी ऑन द इशू ऑफ फेक reservations to the minority community by putting them in the OBC reservation. तो पिछले हफ्ते जो कैलकाटा हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है वो प्रधानमंत्री की बातों को वैलिडेट कर दिया है। एक देखिए, युगल प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की तरह ये तो नहीं कहा ना कि रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे बीजेपी। जो कांग्रेस कर रही है, जो एक बहुत ही जहरीला गेम कांग्रेस खेल रही है, उसको तोड़ने के लिए हमें एक प्रकार से अपनी बातों को इफेक्टिवली रखने के लिए एक कॉन्टेक्स्ट सेट करना था। हमने किया। ओबीसी वर्ग से जो है वो आज से नहीं 95 से जो है, देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था का दर्जा बाय द वे हमने दिया था 2018 में। वो रिकमेंडेशन 1957 से पेंडिंग है। केलकर कमीशन का रिपोर्ट था जिसमें नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड कास्ट को दर्जा दिया जाना था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, वो 70 सालों में नहीं हो पाया था। 2018 में हमने दी। अब नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड कास्ट बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स इन ईच ऑफ द स्टेट्स ये तय करती है कि किन कम्युनिटीज को ओबीसी वर्ग में शामिल किया जा सकता। अच्छा, इस लिस्ट को एनसीबीसी के रिकमेंडेशंस, एनसीबीसी के स्टडी के विपरीत अनेक कांग्रेस के राज्यों में मैनिपुलेट करके विशेष तौर पर मुस्लिम कम्युनिटीज को इसमें शामिल किया जा रहा था उनके वोट बैंक की प्रलोभन के कारण। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण ओबीसी वर्ग को जो उनका अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। So this is exactly which Honorable Prime Minister, the point which Honorable Prime Minister tried to make. And in fact, at the start you had mentioned about specific phases of elections. तो अगर मैं आपको briefly phase 1 के बारे में बताऊं, देखिए phase 1 की highlight थी 39 सीट्स उसमें तमिलनाडु में थे। और वहां हमें पहली बार we are expecting around 3 to 4 seats. It could be higher. अन्ना मलाई जी जो है वो कोयम्बतूर से उन्हें जीतना चाहिए। चेन्नई साउथ में एक अच्छा हमने कॉन्टेस्ट पुटअप किया। कन्याकुमारी में अच्छा कॉन्टेस्ट पुटअप किया। तो पहली बार जो है तमिलनाडु में एक सिग्निफिकेंट इनरोड हम देख रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश में देखिए तरह तरह की जो है योगेंद्र यादव जैसे लोग तरह तरह के आपको जो है अलग अलग परसेप्शन फैलाएंगे, या इवन प्रशांत किशोर जो है कि बीजेपी सीट तो रिटेन कर रही है लेकिन मोदी जी का ब्रांड डेंटेड हो गया। ये अपने आप में कितना बड़ा विरोधाभास है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का तो वो जो है वो असर है ही, बट जो डिलीवरेंस है योगी सरकार का वो बेहतरीन है। और मेरे ख्याल से योगी जी जो है अपने आप में एक बहुत ही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उत्तर प्रदेश में इमर्ज होकर आए। इनफैक्ट यादव कम्युनिटी से कितने लोग जो है, बड़ा वर्ग जो है वो अखिलेश यादव या जो ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न था उसको छोड़कर अब बीजेपी को वोट देता है। मायावती का जो वोट बैंक हुआ करता था एक समय में, दलित वर्ग, वो आज बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक प्रामाणिकता स्थापित हुई है डिलीवरेंस के कारण। तो उत्तर प्रदेश में आज भी मैं 70 से कम सीट नहीं देख पा रहा। ओके, मतलब ये ऑप्टिमिज्म मैं बोलूंगा ऑप्टिमिज्म की पराकाष्ठा है, बट ठीक है, व्हाटएवर यू से, आई एम नोबडी टू कमेंट। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए विपक्ष जो है सोशल मीडिया में या मीडिया में दे मैनेज टू क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइज, बट आज जो है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5 years स्पेशली कांग्रेस से जो पलायन हुआ है, इनके पास ग्राउंड वर्कर्स बाकी नहीं। तो जो सोशल मीडिया में ट्रैक्शन जनरेट करते हैं, आपके पास वोटिंग डे पे कोई तो बूथ वर्कर, कोई तो लोकल वॉलंटियर होना चाहिए जो उसको सपोर्ट कर पाए। और ये पैन इंडिया ये प्रॉब्लम, ये पैन इंडिया ये रिपोर्ट्स आई है कि जो मोमेंटम या जो परसेप्शन वो बिल्डअप कर पाते हैं सोशल मीडिया में, वोटिंग के दिन उनके पास लोकल कार्डर्स नहीं होते हैं, लोकल सपोर्ट उनके पास नहीं होते हैं, और वहां पर जो है बीजेपी को एक बड़ा एडवांटेज मिलता है। बीजेपी के जो बीजेपी का जो सपोर्ट बैंक रहा है वो हमेशा एक बहुत ही आज से नहीं, वो 80s के समय से वो एक बहुत ही कंसिस्टेंट वोट बैंक रहा।
it's विकास प्लस हिंदुत्व। और उनको जो है वो दे हैव नेवर बीन ड्रॉन इनटू जितनी आबादी उतनी हक, और ये जो वापस अगर हम 5 केजी अनाज दे रहे हैं तो कांग्रेस अब 4 फेजेस ऑफ इलेक्शंस के बाद सडनली कहती है तो हम भी 10 केजी देंगे। तो ये सब छलावा में वो आने वाले नहीं है। वो एक बहुत ही कंसिस्टेंट, बहुत ही स्थिर वोट बैंक है, और वो हमेशा जो है राष्ट्रहित में बीजेपी को ही वोट देगी। No, but 70 seats in UP is a very big prediction. मतलब, if you are saying let's wait for fortune to reveal what exactly are the real numbers, but 70 seats only in UP. I don't know why it should be so surprising, because 2014 onwards, BJP has always faced the power. अगर हम 2014 में जब कोई कल्पना नहीं कर रहा था कि 50-55 से ज्यादा सीटें आएंगे, उस वक्त जो है 72 सीटें आ सकती थी, तो उस वक्त तो योगी जी कहीं सीन में ही नहीं थे। ठीक है। डबल इंजन सरकार का जो सबसे बेहतर उदाहरण है या सबसे बड़ा जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है वो उत्तर प्रदेश है। तो मोदी जी का तो अपना है ही एक फिक्स्ड ऑडियंस, एक फिक्स्ड वोट जो हमेशा उनके पास आता है, बट उसको जो एक्सपैंड किया है योगी जी ने। ओके, चलिए, लेट्स मूव टू दीज टू जेंटलमैन एंड देयर प्रेडिक्शंस। वन इज योगेंद्र यादव एंड वन इज प्रशांत किशोर। दोनों ने, पहले मैं ये बताता हूं दोनों की सिमिलैरिटीज क्या है। दोनों की सिमिलैरिटीज ये है कि दोनों ने ये बोला है कि देखिए 400 पार तो पॉसिबल नहीं है, वो दोनों नहीं करते। पहली बात, मैं उस पर आपका स्टैंड जानना चाहूंगा। डू यू थिंक कि 400 पार इज एक्चुअली अ नंबर व्हिच द बीजेपी इज एनी व्हिच वे चेजिंग, और दे आर गोना अटेन दैट? मैं हमेशा कहता हूं आपको, मैंने नॉर्थ ईस्ट के किताब के संदर्भ में भी कहा था, नॉर्थ ईस्ट पे डिस्कशन हो रहा था, कि एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, एक मैनेजमेंट मॉडल है, बिग हेरी ऑडिशियस गोल। प्राइम मिनिस्टर believes in that, setting a very high target which actually ends up improving the performance of everybody in the team. तो aim for the sun, you'll land up in moon, वो वाला सीन है। हाँ, aim for the sun, you'll land up in moon। नहीं, हम तो सन पे भी लैंड कर रहे हैं, पिछली 2 बार से हम तो सन पे ही लैंड कर रहे हैं। पर मैं कह रहा हूं कि उससे क्या होता है कि जब तक एक सेंस ऑफ पर्पस, एक सेंस ऑफ लक्ष्य हर कार्यकर्ता में नहीं होती है, और हर कार्यकर्ता को, हर बूथ वर्कर को इस बार बड़ा स्पेसिफिक लक्ष्य दिया गया था कि अगर 370 बीजेपी को स्वयं अपने बल पर हासिल करना है तो आपको 370 जो है एक्स्ट्रा वोट्स जुटाने होंगे। तो आई थिंक it's in the realm of possibility, I would say. Okay. But like I said, I don't want to sound like the two gentlemen that you just mentioned, because दोनों जो है, दोनों में एक सिमिलैरिटी है। दोनों जो है मर्सनरीज हैं, दोनों अपना स्टैंड बदलते रहते हैं, और दोनों जो है पोस्चरिंग में बिलीव करते हैं। तो वो कोई पॉलिटिशियंस नहीं है, दे डोंट हैव अ फिक्स्ड आइडियोलॉजी, दे क्लेम टू बी स्ट्रेटजिस्ट एंड एनालिस्ट। अगर मैं पहले योगेंद्र यादव की बात करूं तो योगेंद्र यादव डिस्क्लेमर्स देते हैं अपने प्रेडिक्शन पुटअप करने के पहले। देखिए, मैं इस वक्त सेफोलॉजिस्ट तो हूं नहीं, ना तो मैं टूल्स का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड राहुल गांधी? देन राहुल गांधी कहेंगे कि आपको 150 सीटें आ रही है, तो क्या मैं उनको शुक्रिया अदा करूं कि वो 250 दे रहे हैं बीजेपी को? So such people don't have a credibility. मैंने एक ट्वीट भी किया था कि जब आप इस प्रकार के प्रेडिक्शंस देते हैं तो आप पिछले 3 बार के आपकी क्या ऑथेंटिसिटी रही है आपकी प्रेडिक्शन को, आपको वो डिस्क्लेमर के तौर पे देना चाहिए। जहां तक प्रशांत किशोर का सवाल है, देखिए, लाइक आई सेड, मुझे उसमें बहुत बड़ा विरोधाभास दिखता है कि 300 के आसपास, 300 तो आसानी से बीजेपी क्रॉस कर जाएगी, लेकिन मोदी जी का ब्रांड डेंट हो चुका है। This is a vote of skepticism. That is what he said. He never said that कि मोदी जी का ब्रांड डेड हुआ है। He always said कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हुई है। नहीं, आप इंडिया टुडे का इंटरव्यू देखिएगा कि बार-बार वो उसी पर फोकस कर रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी। This is a vote of skepticism. That is the word he used. Okay. How can 300 plus seats be a vote of skepticism? और अगर योगेंद्र यादव 250 कह रहे हैं सिर्फ ये कहकर कि मैं कोई टूल्स पर बिलीव नहीं करता हूं, मैं जो देख रहा हूं वो कह रहा हूं। अगर प्रशांत किशोर जो है 300 कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं
अगर 300 आ रही है, इसका अर्थ यही है कि मोदी जी का ब्रांड जो है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर. 10 साल पहले लोग आशा के साथ वोट दे रहे थे. अब जो है दैट दिस इज अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बेस्ड ऑन द वर्क दैट हैज हैपेंड. So let me put a minimum figure. A minimum figure that I'm expecting is 330 plus for the NDA or for the BJP? for the BJP. Okay. For the BJP. For the BJP. Why do you say? आपने ये क्यों बोला कि ये दोनों पलटू हैं? मतलब ऐसा कब हुआ है कि ये अपने दोनों बातों से पलट चुके हैं? ये तो योगेंद्र यादव तो हमेशा राहुल गांधी के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा में थे, तो मुझे नहीं पता वो क्यों फॉर्मली कांग्रेस के साथ नहीं आते हैं. And at the same time, in between, in the last few years, he has made statements like Congress needs to die for India to have a strong opposition. So there is a weird equation that he has with the Congress party. जब जरूरत पड़ती है साथ में खड़े हो जाते हैं, पूरे भारत जोड़ो यात्रा में साथ में ही दिखे जहां तहां. जब जरूरत पड़ती है तो बाहर हो जाते हैं. बड़ा कन्वीनियंट इनका इक्वेशन रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ. और प्रशांत किशोर का तो एक वक्त बीजेपी के साथ थे, उसके बाद वो आई थिंक ही हैज वर्कड विद एवरीबॉडी. नीतीश कुमार के साथ थे. नीतीश कुमार एक समय उनको उत्तराधिकारी मान चुके थे. उनके साथ भी उनका कुछ गड़बड़ हुआ. तो वो तो मतलब हर सब कुछ अनुभव करके. The good part or the silver lining in all this dark cloud is like दोनों ने ये तो बोल दिया कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है. So उसके लिए तो आपको खुश होना चाहिए. क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि लेकिन वो बड़े स्केप्टिसिज्म के साथ कह रहे थे. दिस इज अ प्रो इनकम्बेंसी वोट. Let us get this clear. This will be a pro incumbency vote and only pro incumbency vote. तो जो असल जीत होगी वो इससे कहीं बड़ी मार्जिन की होगी. इफ्स एंड बट्स वाली जीत नहीं होने वाली. वो मैं कह रहा हूं. Okay. Let's wait for 4 June. Let's wait for 4 June. क्या नंबर आने वाले हैं? लोगों का मत बड़ा स्पष्ट होता है. देखिए, ये कहना कि इस बार हलचल नहीं नजर आ रही है, ये बड़ा सुस्त इलेक्शन है. जब लोग प्रो इनकम्बेंसी वोट पड़ता है तो बहुत हल्ला करके नहीं वोट देते. जब परिवर्तन की जरूरत होती है तो हल्ला होता है देश में. लेकिन अगर ये शांत माहौल है, दैट बाय इटसेल्फ इज अ कोऑपरेशन दैट इट्स अ वोट फॉर कंटिन्यूटी. इट्स ये एक निरंतरता के लिए वोट. Okay. Let's wait for 4 June. I'll still say the same thing. अब let's assume like मैं आपके सामने assume बोलूंगा तो आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बट चलिए मान लेते हैं मोदी 3.0 is in action. What do you think the next 5 years going to be? What kind of main objectives will the government put forward? क्या changes आने वाले हैं? As Modi ji mentioned in a speech कि अगली बार अगर मोदी आया तो कुछ बड़े changes उम्मीद करिएगा. क्या रहेंगे बड़े चेंजेस? यू आर द नेशनल. कुछ चीजों का झलक जो है वो तो आपको मैनिफेस्टो में दिख जाएगा. यूसीसी जो है वो हमारे हृदय के करीब है या हमारी आइडियोलॉजी के करीब है हमेशा. तो निरंतर एक प्रयास रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आए. निरंतर एक प्रयास रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, ताकि हर 4 महीने में, मात्र 4 महीने में इस इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होंगे और 8 महीने के बाद 6 महीने के बाद झारखंड में होंगे और 8 महीने के बाद दिल्ली में होंगे. तो ये जो कांस्टेंट सर्कल चला आता है इलेक्शन का, उसको दूर करने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन पर और पुरजोर तरीके से काम करने की कोशिश होगी. स्टेट इलेक्शंस रहेंगे सिर्फ नेशनल इलेक्शंस रहेंगे? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, देखिए, in the next 6-8 months तो हो नहीं सकता, because that has to be implemented through a legislative process. But in the next 5 years, the idea would be, which is also contained in the BJP vote manifesto, ये दो बातें तो है ही, UCC और 1 nation 1 election का. Besides, beyond that, you will see a whole lot of economic reforms which anyway have been taking place. The investor confidence in India is at an all-time high. The stock markets are waiting to just balloon from here, to just boom from here. And I'm sure that the mandate on 4th June will only reinstate confidence in potential investors in India, in all the mushrooming sectors, whether it is renewable energy, whether it is semiconductor plants, high value manufacturing, which we have focused on in the last few years.
I think all of that will get a massive boost with the verdict on 4th June. ओके, व्हाट डू यू थिंक? एक जो ऑपोजिशन ने हर बार जो एक सवाल उठाया है, विच इज बेरोजगारी पे कोई बात नहीं हो रही, महंगाई पे कोई बात नहीं हो रही, डू यू थिंक दैट्स गोना बी टैकल्ड इन, आई एम नॉट वेटिंग फॉर 5 years, आई एम सेइंग नेक्स्ट 6 months or a year? लेकिन महंगाई की बात जब आप करते हैं तो रिटेल इन्फ्लेशन का जो डेटा है, जो 75-80% of the months from 2014, the retail inflation figure has been less than 5%. बीच में फेजेस आए हैं, यूक्रेन वॉर के समय जो है वो 8% तक भी गया था 1-2 हफ्ते. But by and large, I think the kind of fiscal prudence, the kind of fiscal discipline, and the kind of inflation control which this government has managed in the last 10 years, if you compare it with the previous era, you can see the difference. देखिए, inflation, moderate inflation is also a sign of growth. Somehow the opposition economics is completely screwed up. वो freebies को छोड़कर, सरकारी नौकरी को छोड़कर, वो they don't want an aspirational society for India. That is very clear. And by the way, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये भी लिखा गया था कि इस देश के पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो है माइनॉरिटीज को एक तरह से, the Congress will ensure that equal opportunities are given to minorities for public works contracts. तो आप समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी कांग्रेस की पहली प्राथमिकता जो थी वो धर्म थी, ना कि खासियत. देखिए, एम्प्लॉयमेंट का जहां तक सवाल आता है, एक एसबीआई का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आया था लास्ट ईयर, which had put the inflation figures of the last 4 years, sorry, the unemployment figures of the last 4 years at 3.6%, which is the lowest in 6 years. अभी एक SCOF, एक think tank है, SKOF, which has brought out a report that, in fact, if you consider all aspects, the permanent jobs as well as the contractual jobs, the total figure of employment generated, these are not permanent by the way, over the last 10 years is in the range of 51 crores. मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि 11 लाख करोड़ अगर एक साल का कैपेक्स है, तो are robots, constructing the roads, are robots constructing metro rails, are robots constructing bullet train, corridors? Obviously, such a massive capex investment cannot be jobless growth. But at the same time, the nature of jobs are changing. People are moving out of fixed jobs. They are preferring contractual jobs. They want greater flexibility in their lives. Of course, there is a segment which wants government jobs. और वहां पे भी आप ESIC के डेटा को देखें, हर महीने पिछले 3 साल के देखेंगे, तो ESIC डेटा में हमेशा जो है वृद्धि हो रही है एनरोलमेंट्स की. ओके, तो आई थिंक ये एक अपनी फेलियर्स को एनकैश करने के लिए कांग्रेस को पता है कि ये हर जमाने में, इनफैक्ट आप 70s के जमाने में भी चल जाइए, 60s के जमाने में चल जाइए, ये 2-3 इशू ऐसे हैं कि वो हर बार जो है, जो व्यक्ति परेशान होता है उसको लगता है कि मेरी परेशानी का जड़ यही 2 चीज. And Congress has been playing on that sentiment, but I think, if you go by pure data, if you go by pure, the facts and figures available on public domain, the performance of this government has been far better than many previous governments on these 2 points. Okay. My last question to you is basically an allegation which a lot of leaders in the opposition have already put it out. In the social media scape, a lot of conversations are around this, which is कि अगर Modi 3.0 happens, there will be democracy चली जाएगी भारत से, जितने institutions है, ED, CBI, इन सब पे, income tax, इन सब पे अभी आप देख रहे हैं कि प्रकोप हो रहा है, वो और ज्यादा हो जाएगा. जुडिशरी खतरे में है, हर चीज खतरे में है. How do you respond to that? Ideally, journalists or media people like you should confront this fake narrative. Okay. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लालू यादव कब गिरफ्तार हुए थे? 1997 में हुए थे, चारा घोटाले में. उस वक्त किसकी सरकार थी?
उस वक्त देवगौड़ा की सरकार थी केंद्र में। शिबू सोरेन अपने ही जेएमएम ब्राइबरी केस में अपने ही जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, पीए हुआ करते थे, उनकी हत्या के आरोप में कब गिरफ्तार हुए थे? 2006 में। कौन, किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी। सुरेश कलमाडी जो कांग्रेस के ही थे, सीडब्ल्यूजी स्कैम में 2011 में गिरफ्तार हुए थे। कानीमोजी जो डीएमके की है वो 2011 में गिरफ्तार हुई थी। तो ये लोग जो है आदतन अपराधी हैं, अपराध इनकी फितरत में है। They are blaming the BJP government, they are blaming Modi ji for unleashing the ED upon them, but fact is they have always had a history of corruption, they have always had a history of loot. ये क्या चाहते हैं ये लोग कि ईडी अपना काम नहीं करे? देखिए ये सच है कि ईडी जो है, बहुत सारे ऐसे केसेस है, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस आर नॉट इजी, देयर आर अबाउट 500 केसेस व्हिच हैव नॉट गॉन बियॉन्ड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, और वही केसेस जो है अंजाम तक पहुंची हैं जहां the evidence has been crystal clear and evidence has been so robust that even the courts have upheld the evidence. आपने देखा होगा पिछले 1.5 सालों में कम से कम 3 बार मनीष सिसोदिया की बेल पिटिशन रिजेक्ट हुई। किन आधारों पर? पिछले 30 अक्टूबर 2023 को बहुत स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर इज एविडेंस ऑफ मनी ट्रेल इन पार्ट्स अमाउंटिंग टू 335 करोड़। अभी मई में पिछले सप्ताह दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके बेल को दोबारा रिजेक्ट किया, क्या कह के देयर इज एविडेंस ऑफ हिज कॉम्प्लिसिटी इन द स्कैम, मोर ओवर ही इज पावरफुल इनफ टू इन्फ्लुएंस द विटनेसेस। पिछले महीने अरविंद केजरीवाल का जब प्ली रिजेक्ट हुआ था हाईकोर्ट के द्वारा, उसमें भी इसी प्रकार के डैमिंग ऑब्जर्वेशंस थे। इस बार भी 3 हफ्ते पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने कैंपेनिंग के लिए अरविंद केजरीवाल को बेल दिया तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि दिस बेल इज नॉट बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। तो क्या इन लोगों को देश की न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा नहीं है? देखिए इट्स इजी टू से दैट आप जो है ईडी का सिलेक्टिवली प्रयोग करते हैं, लेकिन आप बार बार ये आरोप लगाकर, अप्रमाणित आरोप लगाकर आप इस देश की न्यायिक व्यवस्था में भी संशय पैदा करते हैं। The same applies to हेमंत सोरेन। पिछले 4 महीनों में उनको बेल बार बार जो है बेल की अर्जी उन्होंने दी, लेकिन the courts found sufficient evidence to seek his or to be of the opinion that he needs to be behind bars. So I think the opposition needs to grow up. ये लोग देश को लूटना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आलमगीर आलम जो कांग्रेस के मंत्री थे, जिनके घर से 35 करोड़, जिनके डोमेस्टिक हेल्प के घर से 35 करोड़ पाए गए, ये चाहते हैं कि धीरज साहू जो इनके राज्यसभा एमपी थे, जिनके घर से 351 करोड़ कैश में पाए जाए। ये एक अलग मॉडल ऑफ फाइनेंसिंग पे हमेशा से कांग्रेस काम करती आई है, और कांग्रेस निश्चित रूप से जो है बौखलाई भी है, बिकॉज उनका वो जो कैश इकोनॉमी था वो खत्म हो गया। So what you're saying is there is no scope for the India Alliance or the Congress to hit or win this election. That's what you're saying, and that's a final submission from your side. And it's going to be at least 330 only for BJP. That's what you are quoting. Well, I'm being realistic. A lot of people are trying to keep themselves in circulation till 4th June. तो राहुल गांधी जब हर सभा में जाके बोलते हैं कि मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि 4 जून को प्रधानमंत्री बदलेगा, तो सवाल ये उठता है कि 4 जून को क्या वो अपना इस्तीफा देंगे भारत की राजनीति से? बार बार इस तरह की बातें जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है वो कहने के लिए। तो मेरे जहन में जो है, जो मुझे दिख रहा है, द वर्डिक्ट इज वेरी क्लियर। दिस इज अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस based on the work which has happened, and I think pro-incumbency for the first time in India's political history, a pro-incumbency vote is a reality and it is a norm. Okay, let's wait for 4th June to unleash the real numbers. Right. Till then, I will say thank you very much for having this conversation with me. Thank you, Abhi. It was amazing to have this conversation. Let's wait for 4th June, and as both of them congratulated the BJP in advance, take that congratulation from my side as well if the government 3.0 is in action. I don't know whether I'll be able to meet you
post 4th June or not, but we'll try to have this conversation again. Super. Super. Thank you, Toheen. Thank you very much for Thank joining you. on Thank ABP you. Live Thank podcast. you. Thanks.